Hello dear students, today we are going to start Maths Part 2, Complex Numbers Exercise 1.3. See question 2. Find real values of theta for which 4 plus 3i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely real. This means you have to simplify the given polynomial in terms of 4 plus 3i sin theta upon 1 minus 2i sin theta, and you have to show it is purely real for some values of theta or more than one value of theta. So see the solution, how to simplify. Let z equal to 4 plus 3i sin theta upon 1 minus 2i sin theta. Therefore, z equal to 4 plus 3i sin theta upon 1 minus 2i sin theta. So multiplying and dividing by conjugate of the denominator. So conjugate of denominator is 1 plus 2i sin theta. Multiply by this in the numerator and also in the denominator by 1 plus 2i sin theta. Therefore, z equal to 4 plus 3i sin theta multiplied by 1 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta into 1 plus 2i sin theta. Therefore, z equals, now to open the bracket in the numerator, so 4 into 1 becomes 4, 4 into 2i sin theta, that is 8i sin theta, and 3i sin theta into 1 plus 3i sin theta, 3i sin theta into 2i sin theta plus 6i square sin square theta divided by 1 minus 2i sin theta into 1 plus 2i sin theta becomes a minus b into a plus b type formula. So it is equal to a square minus b square, that is 1 minus 4i square sin square theta. Now simplify the numerator, so we get 4 as it is. 8i sin theta plus 3i sin theta becomes 11i sin theta. Here I square is minus 1, so 6 into minus 1 becomes minus 6, and sin square theta as it is upon I square is minus 1, so minus 4 into minus 1 becomes plus 4 here. So upon 1 plus 4 sin square theta. और यहाँ पर रीजन दे सकते हो since I square equal to minus 1. Therefore, z equals 4 minus 6 sin square theta, collecting real part in the numerator, plus 11i sin theta, which is imaginary part, upon 1 plus 4 sin square theta. 1 plus 4 sin square theta. Therefore, z equal to, now what we have to do, separate real part and imaginary part with the same denominator. Therefore, z equal to 4 minus 6 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta plus 11 I sin theta अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर जो आई साइन थीटा है, तो आई को हम क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पर लिखोगे 11 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आई. तो इसमें क्यों ऐसा लिखा गया, बिकॉज z इक्वल टू a प्लस बी आई फॉर्म, मतलब हमें ऐसा दिखना चाहिए कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये z इक्वल टू a प्लस आई बी या a प्लस बी आई फॉर्म में है. तो आई को चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट के बाद भी लिख सकते हैं. तो देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने दे दिया कि z इक्वल टू, अब ये एंटायर पार्ट क्या है, रियल पार्ट, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू i, प्लस ये पार्ट है कनेक्टेड टू i, सो इट इज इमेजिनरी पार्ट, मीन्स z इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट. और ये ध्यान दो क्वेश्चन में कि हमें प्रूफ क्या करना है कि इट इज प्योरली रियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है क्या है, प्योरली रियल फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा. तो प्योरली रियल प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास रियल पार्ट है वो तो रियल ही है, ठीक है, जो यहाँ पर रियल पार्ट है तो रियल है, उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं. तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसको देखते हैं कि वो थीटा की कौन सी वैल्यू देता है, क्योंकि तो रियल फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा. तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज दिस, तो ये चेक करते हैं. इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि z इज प्योरली रियल, देयरफॉर इमेजिनरी z इक्वल टू 0, मीन्स ये पार्ट जो है ये 0 होना चाहिए. तो 11 sin थीटा अपॉन 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू आई becomes 0. So what will happen, imgz, that is imaginary part of z equal to 0. So what is imaginary part of z, ये यहाँ समझने की बात है. तो ये रियल पार्ट हुआ, जैसा कि मैंने यहाँ नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, therefore ln sin theta upon 1 plus 4 sin square theta equal to 0. So multiplying denominator by 0,
तो 11 साइन थीटा इक्वल्स 0 इंटू 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लिए। तो देयरफॉर 11 साइन थीटा इक्वल्स 0 बिकॉज 0 इंटू समथिंग इज 0। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 0 upon 11 दैट इज 0। तो साइन थीटा इक्वल्स 0। और ये साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या है? तो साइन थीटा इक्वल टू साइन n पाई, 0 के लिए साइन थीटा इक्वल टू साइन n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये इंटीजर है। यहाँ पर ये z और अपना ये z नॉट रिलेटेड, ऐसा नहीं सोचना। ये z किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और ये z किसके लिए है? इंटीजर के लिए। n बिलोंग्स टू z मीन्स n इज एन इंटीजर। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 इक्वल साइन n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, ये इंटीजर के लिए बोला गया। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स n पाई, तो किस वैल्यू के लिए प्योरली रियल है? थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन थर्ड क्वेश्चन, if z equal to 3 plus 5i, then represent the z bar minus z bar in Argand's diagram। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर z बार माइनस z एंड माइनस z बार क्या है, इनके बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बाद ये सॉल्व करते हैं कि इसका आर्गैंड डायग्राम कैसे बनेगा। लेट अस सी z इक्वल टू 3 प्लस 5i। देयरफॉर z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट को अपोजिट साइन कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पर देयरफॉर z बार इक्वल टू 3 माइनस 5i, क्योंकि देखो यहाँ गिवन नंबर में क्या है? 3 प्लस 5i, तो इसका z बार क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5i। अब इसके बाद हमें अगला नंबर लेना है माइनस जेड। तो माइनस जेड इक्वल टू माइनस ऑफ 3 प्लस 5i, देयरफॉर माइनस जेड इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5i, जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन इन द ब्रैकेट, तो वी गेट माइनस 3 माइनस 5i। एंड माइनस जेड बार मीन्स ये नंबर का कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर देते हैं। तो माइनस ऑफ जेड बार इक्वल्स माइनस 3, अब इसका ऑपोजिट लेना है तो प्लस 5i, माइनस 3 प्लस 5i। अब ये हमें मिल गए जेड बार माइनस जेड एंड माइनस जेड बार। इसके बाद अब जो हमें यहाँ पर सोल्यूशन दिखाना है वो दिखाना है कि इनका आर्गैंड्स डायग्राम क्या है, कैसे बनेगा आर्गैंड डायग्राम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, नाउ पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर आर्गैंड्स डायग्राम आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर चूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे ऊपर आ चुके हैं सब यहाँ पर, ये सभी नंबर्स को यहाँ पर डाउन करते हैं कि z इक्वल टू 3 प्लस 5i। दिस इम्प्लाइज दैट कोऑर्डिनेट, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट a, लेट इट बी a, 3 कामा 5, 3 कामा 5 कहाँ से मिलेगा? a प्लस बी आई फॉर्म से। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, और ऐसे ही हम सभी कॉम्प्लेक्स नंबर में a एंड b का वैल्यू यहाँ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे और इनको अज्यूम कर लेते हैं कि लेट a b c d आर पॉइंट्स। तो फर्स्ट वन z इक्वल टू 3 प्लस 5i, दिस इम्प्लाइज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ a 3 कामा 5, z बार 3 माइनस 5i, दिस इम्प्लाइज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ b 3 माइनस 5, and minus z equals minus 3 minus 5i, this implies that c, coordinate of c, minus 3 minus 5, and minus z bar minus 3 plus 5i implies that coordinate of d minus 3 minus 5. Now plot quadrant system, that is x-axis and y-axis. So plotting x dash and y dash, this is origin, and take the scale 1 2 3 4 5, here 1 2 3 4 5, and here minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5, and downward also minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5, and plot these points. So coordinate of a 3 comma 5, that is in first quadrant, और ये complex number यहाँ पर क्या है? z equal to 3 plus 5i. Second b 3 minus 5, z bar 3 minus 5i, complex number, and c minus 3 minus 5, so minus z equals minus 3 minus 5i, and coordinate of d minus 3 minus 3 and 5, so minus z bar equals minus 3 plus 5i। ठीक है, तो ये रहा हमारा आर्गैन डायग्राम, कोऑर्डिनेट ऑफ a, कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ c एंड कोऑर्डिनेट ऑफ d with their complex numbers. So this is known as Argand's diagram for this question.
Now see question number 4. In question number 4, first one, express the following complex numbers in polar form and exponential form. तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, हाउ टू फाइंड थीटा, हाउ टू फाइंड एंगल, हाउ टू फाइंड एम्पलीट्यूड, और यू कैन से आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट वन, लेट z equal to -1 plus root 3i. So comparing with z equal to a plus bi, therefore a equal to -1 and b equal to root of 3. यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया इन दोनों को, तो we get a equal to -1 and b equal to root of 3. Now we have to find value of r, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड z, भी इसका नाम है, या मॉडुलस ऑफ z। तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, therefore r equals under root -1 square plus root of 3 square, and it is equal to 1 plus 3 equals root of 4, therefore r equal to 2। ले लिया, स्क्वायर रूट यहां पर कर दिया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट r equal to 2। Since sin theta equal to b upon r, this is formula, therefore sin theta equal to root 3 upon 2, value of b is root 3 and value of r is 2, so sin theta root 3 upon 2। अब चलो cos थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल्स a अपॉन r, दिस इज फार्मूला, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स -1 अपॉन 2, बिकॉज वैल्यू ऑफ a इज -1 एंड r इक्वल टू 2, सो cos थीटा इज -1 अपॉन 2। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है वो देखो कि वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये हमारे पास वैल्यूज आ गए साइन थीटा एंड कॉस थीटा के लिए, ठीक है। तो साइन थीटा √3/2 एंड कॉस थीटा -1/2। तो ये देखना है कि अब हमें थीटा का एक कॉमन वैल्यू फाइंड करना है, ऐसा नहीं कि हम इसका डिफरेंट वैल्यू और इसका डिफरेंट वैल्यू फाइंड करें। जैसे साइन थीटा √3/2 साइन 60 डिग्री के लिए होता है, लेकिन अगर हम थीटा को 60 लेते हैं तो कॉस 60 क्या देगा, हाफ, न कि -हाफ। तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनवैलिड। जो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो मैं बता रहा हूं पहले। जैसे भी साइन थीटा क्या मिला, +√3/2, सपोज हम साइन के साथ डिस्कस करते हैं, और कॉस थीटा क्या मिल रहा है, -1/2। तो कोई थीटा का ऐसा कॉमन वैल्यू होना चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को सेटिस्फाई करे। जैसे अभी साइन थीटा √3/2, ठीक है, वी नो वेरी वेल और यू नो वेरी वेल साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, लेकिन क्या वो थीटा का वैल्यू अगर हम 60 रखते हैं तो थीटा की वैल्यू cos 60 -हाफ सेटिस्फाई करेगा, नो, इट विल नॉट सेटिस्फाई, नेवर सेटिस्फाई। सो व्हाट शुड वी डू हियर, हमें एक ऐसा कॉमन वैल्यू ढूंढना है जो थीटा के लिए दोनों को सेटिस्फाई करे, इसका प्लस वैल्यू दे और इसका माइनस। तो चलो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं वैल्यूज ऑफ a एंड b के लिए, ये चेक करते हैं कि a इज -1 एंड b इक्वल टू √3। सपोज अगर हमें इसका आर्गन डायग्राम बनाना होता तो -1 एंड √3 कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, सिर्फ इतना बता दो। तो सिंस -1 √3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसका मतलब है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इतना तो कंफर्म हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई थी √3/2 या -हाफ के लिए जो भी वैल्यू आई थी, तो उसको हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चलेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चलने के लिए हमें क्या करना होगा कि साइन पाई, जैसे साइन 180 -60, ये किसका वैल्यू था, 60 डिग्री का, तो साइन 180 -60 क्या होता है, साइन 60, और कॉस 180 -60 क्या होता है, माइनस कॉस 60। तो ये निगेटिव साइन दे देगा, और दोनों के वैल्यूज क्या है, साइन 60 √3/2 हो जाएगा और माइनस कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा -हाफ। इसका मतलब जो हमने अभी सिलेक्शन लिया वो करेक्ट है। तो यहाँ -1 एंड √3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, जिससे हमें पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम यहाँ पर थीटा को कितना ले लेंगे, 180 -60, तो 180 -60 कितना आ गया, 120। और 60 क्यों लिया वो भी रीजन बताया, क्योंकि साइन 60 ही √3/2 होता है, ओके। तो हमने 180 -60 लिया तो मिल गया 120 डिग्री। देयरफॉर साइन 120 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड कॉस 120 डिग्री इक्वल टू -1/2, ये लिख सकते हो। या अगर रेडियन में लिखना है तो 120 को हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि नीचे कन्वर्ट किया गया है। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री,
इक्वल्स 120 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो सिंप्लीफाई कर लिया और ये आ गया हमारा थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो ये 2 पाई अपॉन 3 बोले या 120 डिग्री बोले, ये ऐसा वैल्यू है जो साइन 120 डिग्री रूट 3 अपॉन 2 देगा और कॉस 120 डिग्री माइनस 1 अपॉन 2 देगा। तो ये हो गया थीटा का एक कॉमन वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, और थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। और एक और मेथड है इसको फाइंड करने के लिए कि सपोज कर लो कि हमने tan थीटा फाइंड कर लिया। tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला है। तो tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, तो b क्या है यहाँ पर, फिर से चेक करते हैं। b है √3 और a क्या है -1, तो √3 अपॉन -1 दैट इज tan थीटा इक्वल टू -√3। तो अब ये देखेंगे कि tan -√3 किस क्वाड्रेंट में है, और उसके साथ साथ हमें a और b को भी चेक कर लेना चाहिए, तो भी हमें थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 मिल जाएगा। ऐसा मैं किसी अगले क्वेश्चन में बता देता हूं अभी। चलो पोलर फॉर्म ऑफ z, अब आते हैं। थीटा मिल गया, r मिल गया, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज यही थे कि वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ थीटा 2 पाई अपॉन 3, या r और थीटा मिल गए तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस फॉर्म में लिखना है हम लिख सकते हैं। चलो पोलर फॉर्म ऑफ z या पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन theta. This is formula for the polar form. Now, substituting the value of r, which is 2, and substituting the value of theta for cos and sin, which is 2 pi upon 3. So, we get polar form of z equal to 2 into cos 2 pi upon 3 plus I sin 2 pi upon 3. ये वैल्यूज मिल गए, तो ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इक्वल्स r इंटू ई रेज टू आई थीटा, दिस इज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें बाहर रहना चाहिए, लर्न रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इक्वल्स r इंटू ई रेज टू आई थीटा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू आई इंटू 2 पाई अपॉन 3। तो i इंटू 2 पाई अपॉन 3 कैन बी रिटन एज 2 into e raised to 2 pi upon 3 into I. ठीक है, both are correct, in any one form you can write 2 into e raised to 2 pi upon 3 I. So this is exponential form of this complex number जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लेट z इक्वल टू माइनस आई, लेट z इक्वल टू माइनस आई। So it can be written as z equals 0 minus I, 0 minus 1i या 0 minus I. Comparing with z equal to a plus bi, therefore a equal to 0 and b equal to minus 1. So a is 0 and b minus 1. Now we have to find value of r. R equal to under root a square plus b square equals square root of 0 plus 1 equals 1. Now using formula for sin theta and cos theta. So sin theta equal to b upon r equal to minus 1 upon 1. Therefore sin theta equals minus 1. And cos theta equal to a upon r equals 0 upon 1 equals 0. Now we have sin theta minus 1 and cos theta equal to 0. तो अब फिर से हमें ए थीटा का एक कॉमन वैल्यू ढूंढना है जिसमें साइन के लिए -1 देता हो और कॉस के लिए 0 देता है। तो चलो चेक करते हैं पहले इसके कोऑर्डिनेट को कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। कि सिंस 0 - 1 का मतलब हमें क्या लेना है, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखो a is 0 b -1, तो a एंड b लाइज इन नेगेटिव आई एक्सिस, लाइज ऑन नेगेटिव आई एक्सिस, या 0 - 1 लाइज ऑन नेगेटिव आई एक्सिस exactly on y-axis with negative direction. Therefore, theta equal to 270 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 270। जैसे वाई एक्सिस को अगर काउंट भी करोगे क्वाड्रेंट में जा करके या इस डायग्राम में अगर चलते हो तो मैं दिखा देता हूँ आर्गेंट्स डायग्राम जो अभी अभी बनाया गया था कि 270 डिग्री हाउ। देखो ये रहा हमारा एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270। तो जो हमारा वैल्यू है वो -1 कामा सॉरी 0 कामा -1 है, तो वो वाई एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। इसलिए ये क्या है, यहाँ से देखो यहाँ से लेकर के एग्जैक्टली यहाँ तक 270 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स 270 डिग्री।
और वही थीटा इक्वल टू 270 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थीटा इक्वल्स 270 डिग्री इक्वल्स 3 पाई अपॉन 2। कभी भी डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन है तो मल्टीप्लाइंग बाय पाई अपॉन 180। तो हमें मिल गया सिंप्लीफाई करके 3 पाई अपॉन 2 रेडियन। और tan थीटा से देखो, मैं बताया था कि मैं किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए इक्वल्स -1/0। तो -1/0, तो माइनस साइन एज इट इज, एंड 1/0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। तो tan का माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ पर आता है, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू tan 270 डिग्री, या इसी को 3 पाई अपॉन 2 लिखेंगे, दैट इज tan 3 पाई अपॉन 2 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2। तो हम इतने से भी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विथ tan ओनली, तब हमें उसमें साइन और कॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना कि क्वाड्रेंट को साथ में लेते हुए उसको देखते हुए चेक करना है, कि जिससे हमारा थीटा का वैल्यू मिस्टेक ना हो, कि दोनों को सेटिस्फाई करे, साइन को भी कॉस को भी। क्योंकि tan से हमने कंबाइंड वैल्यू निकाल लिया, तो क्वाड्रेंट को चेक करना जरूरी है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो चलो, इस तरह से हमें मिल गया कि थीटा इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2। नाउ पोलर फॉर्म ऑफ जेड आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू 1 इंटू कॉस 3 पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन 3 पाई अपॉन 2, and exponential form of z r into e raised to I theta equals 1 into e raised to I into 3 pi upon 2 equals 1 into e raised to 3 pi upon 2 into I। ये फॉर्म में लिख दिया, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आर्गेंस डायग्राम, रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स एटसेट्रा। See third one, let z equal to -1. So this complex number z equal to -1 plus 0i. It can be written as -1 plus 0i. So you can say which is of the form a plus bi. So comparing with z equal to a plus bi, therefore a equal to -1 and b equal to 0. Since r equal to under root a square plus b square equals square root of 1 plus 0, that is 1. So r equals 1. Since sin theta equal to b upon r, value of b is what here, 0. So sin theta equal to 0 upon 1 equal to 0. And cos theta equal to a upon r minus 1 upon 1 equals -1. तो हमें sin theta 0 मिल रहा है और cos theta मिल रहा है -1। तो यहाँ पर ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू ही है, या ए बी का वैल्यू चेक करते हुए भी देख सकते हो कि a -1 एंड b 0, तो -1, 0 लाइज on x एक्सिस, राइट, -1, 0 लाइज ऑन x एक्सिस। तो ये कितना डिग्री एंगल हो गया, तो नेगेटिव x एक्सिस कितना एंगल फॉर्म करेगा, 180 डिग्री। तो देयरफॉर साइन पाई, तो साइन पाई इज 0 एंड कॉस पाई इज -1। वैसे स्टैंडर्ड वैल्यू भी है ये, कि साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 एंड कॉस पाई का वैल्यू -1। तो ये दोनों हमारे सेटिस्फाई कर गए कि साइन थीटा 0 दैट इज साइन पाई एंड कॉस थीटा इक्वल टू -1 दैट इज कॉस पाई। तो थीटा इक्वल टू पाई, और क्वाड्रेंट से भी जाकर के फाइंड हो गया कि -1, 0 लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री का कन्वर्जन क्या है, पाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ विल यू फाइंड थीटा। अगर थीटा फाइंड करके हमने सही आंसर निकाल लिया, थीटा के लिए हमने सही आंसर फाइंड आउट कर लिया, तो आगे का हमारा सभी आंसर जो है वो राइट रहेगा, और राइटिंग कोई मिस्टेक नहीं हुई तो। चलो अब लिखते हैं, थीटा पाई मिल गया और r इक्वल टू 1। तो पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इट इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो r इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, इट इज पोलर फॉर्म, r का वैल्यू क्या है, 1। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इज r इंटू ई रेज टू आई थीटा, देयरफॉर पोलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z 1 इंटू ई रेज टू आई पाई, और 1 इंटू ई रेज टू पाई इंटू आई, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। चलो अब फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वन, लेट z इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आई। अब ये एक रेशियो के फॉर्म में दे दिया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो इट इज कन्फर्म हियर कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर।
Therefore z equal to 1 into 1 minus I upon 1 plus I into 1 minus I, because conjugate of denominator is 1 minus I. तो 1 minus I से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वी गेट z इक्वल टू, देखो 1 into 1 minus I, 1 minus I, 1 plus I into 1 minus I becomes 1 square minus I square, that is 1 minus I square. But I square is minus 1, so here 1 minus minus 1 becomes 1 plus 1. So 1 minus I upon 1 plus 1 equals 1 minus I upon 2. Now separate it. So therefore z equal to 1 upon 2 minus 1 upon 2I. हमने इसको a plus bi के फॉर्म में स्प्लिट कर लिया. So comparing with z equal to a plus bi, therefore a equal to half and b equal to minus half. A is plus half and b equal to minus half. ऐसा भी बोल सकते हो. Since r equal to under root a square plus b square, so it is square root of half square plus minus half square. तो स्क्वायर ऑफ ईच टर्म इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4, और 1/4 प्लस 1/4 को ऐड कर लिया तो कितना हो जाता है 2/4. तो 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 1/2. तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, दैट इज r इक्वल टू 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहता है, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रूट ऑफ 2 एज इट इज. So value of r is 1/√2. Now using formula for sin theta and cos theta. Since sin theta equal to b upon r and cos theta equal to a upon r. तो चलो इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं. Therefore sin theta equals वैल्यू ऑफ b. वैल्यू ऑफ b क्या है माइनस हाफ अपॉन 1/√2. तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा -1/2 इंटू √2/1. सिंप्लीफाई कर लिया तो मिला हमें sin theta equal to -1/√2 and cos theta 1/2 upon 1/√2. Simplifying we get cos theta equal to 1/√2. So we have two values -1/√2 and 1/√2 for sin theta and cos theta respectively. Now we have to find a value of theta which satisfy both sin theta and cos theta. तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जो कॉमन वैल्यू, थीटा की जो कॉमन वैल्यू आएगी वो हमें ढूंढना है, पता करना है. तो चलो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि माइनस एंड प्लस ये हमारे वैल्यूज हैं साइन और कॉस के लिए. तो हमारे ए बी के वैल्यूज क्या हैं प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. तो हाफ एंड माइनस हाफ और प्लस हाफ एंड माइनस हाफ लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. कौन से क्वाड्रेंट में फोर्थ. देयरफॉर थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये कंफर्म हो गया कि थीटा की वैल्यू बिटवीन 270 टू 360 आने वाली है, ये कंफर्म हो जाता है. तो ये पता करना है अभी कि ये 1/√2 किससे रिलेटेड है. ये जैसे भी सपोज कर लो कि ये क्या वैल्यू है माइनस साइन 45 डिग्री, माइनस साइन 45 डिग्री और एक कॉस 45 डिग्री. तो माइनस साइन जो यहाँ पर आता है उसी को हमें इंक्लूड करने के लिए फॉर्मूले में जाना पड़ेगा. तो -1/√2, तो साइन थीटा इक्वल साइन -π/4, क्योंकि -1/√2 है. तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 2π - π/4, क्योंकि हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है. दिस इज द रीजन वी शुड टेक 2π - π/4. तो साइन थीटा इक्वल टू साइन, अभी 2π - π/4 कितना हो जाएगा 4 टू जा 8π - π, दैट इज 7π/4. तो साइन थीटा इक्वल साइन 7π/4. पहले कॉस को भी कन्वर्ट कर लेते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस -π/4. एक्चुअली कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो यहाँ पर हम -π/4 लिखें तो भी और नहीं लिखें तो भी ये cos 2π - π/4 इज ऑलवेज cos π/4, क्योंकि पॉजिटिव है 1/√2. लेकिन cos ऑफ 2π - π/4 ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा cos ऑफ 7π/4. तो cos थीटा cos 7π/4 एंड sin थीटा sin 7π/4. अब थीटा की वैल्यू देखो दोनों में कॉमन हो गई ना अभी कि थीटा इज 7π/4 और यहाँ से भी cos थीटा cos 7π/4, तो थीटा इज 7π/4. देन वी कैन से थीटा इक्वल्स 7π/4. रिमेंबर दैट थीटा मस्ट बी कॉमन इन बोथ. ऐसा नहीं कि थीटा का साइन का कोई डिफरेंट वैल्यू है और कॉस का कोई डिफरेंट वैल्यू है. तो इट इज नॉट अलाउड इन दिस क्वेश्चन और एनी अदर क्वेश्चन. तो थीटा इज 7π/4.
ये मिल गया, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू यही रहता है। Therefore, polar form of z r into cos theta plus I sin theta becomes 1 by root 2 into cos 7 pi upon 4 plus I sin 7 pi upon 4, and its exponential form of z equals r into e raised to I theta equals 1 upon root 2, वैल्यू ऑफ r हो गया, into e raised to 7 pi upon 4 into I. So r, that is 1 by root 2 into e raised to 7 pi upon 4 into I. This is exponential form of same complex number. Now see next one, question number 5th. Let z equals 1 plus 2i upon 1 minus 3i. It is also in the ratio form. So here conjugate of denominator is 1 plus 3i. So multiplying and dividing by 1 plus 3i in the given complex set, a given complex ratio. Therefore z equal to 1 plus 2i into 1 plus 3i upon 1 minus 3i into 1 plus 3i. कर दिया multiply. Now 1 plus 2i into 1 plus 3i becomes 1 plus 3i plus 2i plus 6i square upon using a minus b into a plus b in the denominator we get 1 square minus 3i whole square, that is 1 minus 9i square. But I square is minus 1 for both. यहाँ पर भी i square minus 1 रखना है और यहाँ पर भी i square को minus 1 रखना है. तो therefore z equal to 1 plus 5i minus 6, क्योंकि 3i plus 2i कितना हो गया 5i, तो 1 plus 5i minus 6 upon 1 minus 9 into minus 1, that is 1 plus 9 because I square is minus 1. Therefore 1 minus 6 here minus 5 plus 5i as it is upon 1 plus 9 becomes 10. Therefore z equal to minus 5 upon 10, that is minus 1 by 2, plus 5i upon 10, that is half into I, which is of the form z equal to a plus bi. So comparing with z equal to a plus bi, therefore a equals minus 1 by 2 and b equals plus 1 by 2. देखो a is negative and b is positive, so a equal to minus half and b equal to plus half. Now we have to find value of r. R equal to under root a square plus b square equals under root minus half square plus half square equals square root of 1 by 4 plus 1 by 4. Therefore r equal to 1 upon root 2. So we get value of r. Since sin theta equals b upon r and cos theta equals a upon r, ये क्या है फॉर्मूले थीटा के लिए, cos थीटा एंड sin थीटा के लिए. तो sin थीटा इक्वल टू प्लस हाफ अपॉन 1 बाई रूट 2 इक्वल टू प्लस 1 अपॉन रूट 2 एंड cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ अपॉन 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स माइनस 1 अपॉन रूट 2. ये सिंप्लीफाई कर लिया दोनों फ्रैक्शन को, तो हमें मिल गया प्लस 1 बाई रूट 2 एंड माइनस 1 बाई रूट 2 और द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा रिस्पेक्टिवली. अब फिर से हमें एक ऐसा कॉमन थीटा ढूंढना है कि जिसका सोल्यूशन प्लस 1 बाई रूट 2 साइन थीटा के लिए और माइनस 1 बाई रूट 2 कॉस थीटा के लिए होना चाहिए. तो सबसे पहले चेक करते हैं कि वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. तो ए एंड बी हमारे हैं माइनस हाफ एंड हाफ, तो माइनस हाफ एंड प्लस हाफ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट. तो थीटा भी सेकंड में ही आएगा. ये चेक कर लेते हैं. तो ये जो साइन थीटा प्लस 1 बाई रूट 2 है, ये किसका वैल्यू है? 45 डिग्री का. तो 45 डिग्री को हमें सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चलना है. ओके, तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 या प्लस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. 180 माइनस 45 डिग्री विच इज 135 डिग्री, और इसी को हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो पाई माइनस 1 पाई अपॉन 4. देयरफॉर साइन थीटा इक्वल साइन 3 पाई अपॉन 4, सब्ट्रैक्टिंग हियर. तो साइन थीटा इक्वल साइन 3 पाई अपॉन 4. अब कॉस के लिए भी चेक कर लेते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2 इक्वल्स कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 4, क्योंकि कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 4 होता है माइनस कॉस पाई बाई 4, जो माइनस 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा. तो कॉस थीटा इक्वल्स कॉस 3 पाई अपॉन 4. कॉस थीटा इक्वल्स कॉस 3 पाई अपॉन 4. देयरफॉर थीटा इक्वल्स 3 पाई अपॉन 4. देखो दोनों के लिए साइन थीटा साइन 3 पाई अपॉन 4, कॉस थीटा कॉस 3 पाई अपॉन 4, तो दोनों में थीटा क्या है? सेम है.
Therefore, theta equal to 3 pi upon 4. Now, we have to write polar form and exponential form. So, polar form of z equals r into cos theta plus I sin theta. Therefore, polar form equals 1 by root 2 into cos 3 pi upon 4 plus I sin 3 pi upon 4. And exponential form of z r into e raised to I theta. Therefore, it is equal to 1 upon root 2 into e raised to 3 pi upon 4 into I. तो ये रहा अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये रहा अपना पोलार फॉर्म. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. लेट z इक्वल टू 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई होल स्क्वायर. अब ये रेशियो के फॉर्म में है, उसके साथ साथ डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला भी अप्लाई करनी है. तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सभी को पता है, तो चलो डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं. लेट z इक्वल टू 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई होल स्क्वायर equals 1 plus 7i as it is upon 2 minus I whole square is 4 minus 4i plus I square. So substituting I square equal to minus 1 in the denominator, we get z equal to 1 plus 7i upon 4 minus 4i minus 1 because I square is minus 1. अब इसके बाद z equal to 1 plus 7i as it is upon 4 minus 1 that is 3. So 3 and minus 4i as it is. So 1 plus 7i upon 3 minus 4i. So multiplying by conjugate of denominator. So multiplying by 3 plus 4i in numerator and denominator here. So we get z equal to 1 plus 7i into 3 plus 4i upon 3 minus 4i into 3 plus 4i. So multiplying these two brackets, we get z equals 3 plus 4i plus 21i plus 28i square upon 9 minus 16i square. Substituting I square equal to minus 1, we get z equals 3 plus 25i minus 28 upon 9 plus 16 because I square equal to minus 1. Here 4i plus 21i becomes 25i and 28 into minus 1 becomes minus 28. Here minus 16 into minus 1 becomes plus 16. Therefore, z equals here 3 minus 28 becomes minus 25 plus 25i as it is upon 9 plus 16 that is 25. Therefore, z equals minus 25 upon plus 25 that is minus 1 and 25i upon 25 that is I only. So z equals minus 1 plus I, or you can say z equals minus 1 plus 1i. Now comparing with z equals a plus bi because this complex number is of the form a plus bi. So we should compare it by z equal to a plus bi. Therefore a equal to minus 1 and b equals plus 1 that is 1. Since r equal to under root a square plus b square which is also known as modulus of z. So modulus of z or you can say r equal to under root a square plus b square equals square root of 1 plus 1 equals root of 2. Since sin theta equals b upon r, value of b is 1 and r equal to root of 2. Therefore sin theta equals 1 upon root 2 and cos theta a upon r equals minus 1 upon root 2 because a equal to minus 1 and r equal to root of 2. So we have values sin theta 1 by root 2 and cos theta minus 1 by root 2. Now we have to find a common solution for theta, a common value of theta which satisfies both sin theta and cos theta which are 1 by root 2 and minus 1 by root 2 respectively. तो सबसे पहले चलते हैं, चेक करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है. तो पॉइंट्स minus 1 and 1 which are values of a and b. a is minus 1, b equal to 1. So minus 1 and 1 lies in second quadrant. Therefore sin theta equals 1 upon root 2 equals sin pi minus pi upon 4. Why it is pi minus pi upon 4? Because sin theta equal to 1 by root 2 which is sin 45 degree or sin pi upon 4 in radian.
तो साइन 1/√2 कैन बी रिटेन एज इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा यहाँ क्या है पाई अपॉन 4, तो साइन पाई माइनस पाई अपॉन 4 ये सोल्यूशन के लिए न कि मेन वैल्यू का थीटा। Therefore, sin theta equals 1/√2 equals sin 3 pi upon 4 because 4 1 जा 4 pi minus pi that is sin 3 pi upon 4। तो हमें मिल गया कि sin theta equals 1/√2 equals sin 3 pi upon 4 and cos theta minus 1/√2 equals cos pi minus pi upon 4, similar formula, equals cos 3 pi upon 4। Therefore, theta equals 3 pi upon 4। So now we have the value of r and theta. So we can write here polar form of z equals r into cos theta plus I sin theta, which is formula for the polar form. So substituting the value of r and theta, we get polar form of z equals √2 into cos 3 pi upon 4 plus I sin 3 pi upon 4. Exponential form of z, exponential form of z, r into e raised to I theta equals √2 into e raised to 3 pi upon 4 into I. So this is exponential form. Now for the remaining questions हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देखते रहिए, और जो स्टूडेंट अभी न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो यू विल गेट इमीडिएटली नोटिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड न्यू वीडियोस। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं वो लोग प्रीवियस वीडियो में जा करके सभी फार्मूले, रूल्स, डेफिनेशंस रेफर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर उनको कोई भी डाउट्स है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड इट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।